Assalamu alaikum everyone. This is me Khadija Hamid and our today's topic is all about binary compounds of hydrogen. This is a topic that I got from chapter number 2 hydrogen of 12th class chemistry. So let's get started. So binary compounds of hydrogen combines with other elements and forms binary compounds which are called hydrides. हाइड्रोजन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है और उन बाइनरी कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स कहते हैं. हाइड्रोजन फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड्स विद ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैसेज. हाइड्रोजन जो है अपने कंपाउंड्स मेटल्स के साथ भी बनाता है, नॉन मेटल्स के साथ भी बनाता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैसेज मीन्स इनर्ट गैसेज के साथ वो अपने बाइनरी कंपाउंड्स नहीं बनाता. ठीक है, तो इस फर्स्ट स्लाइड में इंट्रो में आपको यही याद रखना है कि हाइड्राइड्स क्या है. सो whenever hydrogen combines with other elements and forms binary compounds, these are called hydrides of hydrogen or simply hydrides. हाइड्रोजन जो है अपने बाइनरी कंपाउंड्स हर टाइप के एलिमेंट्स के साथ बनाता है, चाहे वो मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, लेकिन इनर्ट गैसेस के साथ या फिर इनर्ट गैसेस को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, उसके साथ नहीं बनाता. ठीक है, so do not confuse between metals and non-metals and inert gases. I'll give you a brief information about this later. So I've added a slide over here that is called as what are metals and non-metals. So metals and non-metals are different types of materials present around us. ठीक है, these are the materials that are present around us. Metals की examples क्या है, like copper and aluminium. ठीक है, like copper, यहाँ पे मैंने picture भी add की हुई है. See, this is the copper wires which are used in the electrical wires. ठीक है, metals are good conductors of heat and electricity. So first thing you have to keep in your mind that metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals example क्या है, जैसे कि phosphorus and sulfur are insulators. So it is very like simple. So what if anyone asks you that what is the difference between metals and non-metals, so you can just easily say that metals are good conductors of heat and electricity while non-metals are insulators. Whereas insulators means something that is bad conductor, that is poor conductor of heat and electricity. So metals who are good conductors of heat and electricity, for example aluminium and copper, and non-metals are insulators. That means they are bad conductor of electricity such as phosphorus and sulfur. Now we have here what are inert or noble gases. So first thing you have to keep in your mind that these are similar. These two terms are similar. Noble gas, any of the 7 chemical elements that make up group 8A. ठीक है, 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इनर्ट गैसेस हैं, सारे नोबल गैसेस हैं. ठीक है, अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखें, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी शो करवाऊंगी कि इनर्ट गैसेस की पोजीशन कहाँ है. सो यू कैन जस्ट इजीली फाइंड आउट वेयर इट इज. So you have to keep in your mind that 8 group elements are known as inert or noble gases. So these elements are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and agoniston. ठीक है, they are colorless, इनका कलर नहीं होता. ठीक है, they are colorless, they are odorless, इनकी कोई स्मेल नहीं होती. they are tasteless, इनका कोई टेस्ट नहीं होता. एंड दे आर इनफ्लेमेबल. ठीक है, they are inflammable, that is they are not able to catch fire easily. ठीक है, I hope you know the difference between flammable and inflammable. Flammable is something that catches a fire easily, and inflammable something that does not catch fire easily. So yeah, inert gases और noble gases same है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, और 8A ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो noble gases में आते हैं, और वो कितने हैं, वो इतने हैं. हीलियम है, neon है, argon, krypton, xenon, radon and so I was talking about this white ones. These are helium, neon, argon and so on. So these white one, as you can see over here, noble gases. ठीक है, noble gases है.
उसके बाद जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन लाइन है, सेम कलर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो दीज ऑल आर हेलोजेंस, मीन सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए, लेफ्ट पे आए, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है जो कि क्या है, अल्कली मेटल्स हैं. उसके बाद ऑरेंज वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं. ठीक है. उसके बाद ये पर्पल वन सारे जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं. ठीक है. उसके बाद अदर मेटल्स हैं. ठीक है. उसके बाद ये जो पिंक है, डार्क पिंक है, ये अदर नॉन मेटल्स हैं. ठीक है. अच्छा, हमारा जो पीरियोडिक टेबल जो हमारी बुक में ऐड हुआ हुआ है वो इस तरीके से, जैसे कि अभी हम यहाँ देखें, सो दीज आर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. एंड देन दीज आर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स दैट आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एंड देन वी हैव हियर थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स जिसके अंदर ये सारे हैं. ठीक है. उसके बाद ये है फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स, सिक्स्थ एंड सेवेंथ हेलोजेंस आ गए, एंड एट्थ ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस. ठीक है. ये पर्पल वन ट्रांजिशंस आ जाते हैं और SPDF में डिवीजन हो जाती है. मैंने आगे की स्लाइड्स में भी आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर जो है पीरियोडिक टेबल ऐड हुआ है वो भी ऐड किया, तो हम उसको भी थोड़ा सा टच कर लेंगे. ठीक है. So let's get into our topic. That was and just the information that you must have in order to be forward. So मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं. हमेशा जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ तो वो बाइनरी कंपाउंड बनाएगा और उन कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स कहेंगे. ठीक है. लेकिन आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि हाइड्रोजन अपने बाइनरी कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ बनाता है, लेकिन वो इनर्ट गैसेस के साथ अपने जो है क्या नाम है हाइड्राइड्स नहीं बनाता. So yes, so types of hydrides, there are 6 types of hydrides. So hydrides may be classified into the following major groups according to the nature of group and properties. These are ionic, covalent, complex, metallic, polymeric, borderline. ठीक है. These are 6 types of hydrides. So let's get into the first one. So we have ionic hydrides. Group first day and second day elements combine with hydrogen to form ionic hydrides. ठीक है. क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे. यानी कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे. उसके बाद हाइड्रोजन इज नेगेटिव आयंस इन दीज हाइड्राइड्स इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव, द बॉन्ड इज आयोनिक. ठीक है. जब भी हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ या सेकेंड ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, अपना हाइड्राइड बनाएगा, तो हाइड्रोजन के पास हमेशा जो है नेगेटिव आयन आएगा, क्योंकि वो एक एटम जो है उन एलिमेंट से ले लेगा. तो हाइड्रोजन के पास हमेशा नेगेटिव आयन आएगा क्योंकि हाइड्रोजन इस पे आयोनिक बॉन्ड बना रहा होगा. आयोनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर कलरलेस एंड नॉन वॉलेटाइल है. ठीक है. दे कैन नॉट एवोपोरेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्ट लाइक सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है. उसके बाद आयोनिक हाइड्राइड्स को हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स और सलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं. ये भी आपको अपने जहन में जरूर रखना है क्योंकि ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ionic hydrides are also known as salt like hydrides और सलाइन हाइड्राइड. अच्छा, इसके अंदर हमने कैल्शियम और हाइड्रोजन के 2 मोल्स पे रिएक्ट करवाया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड बना है. उसके बाद सोडियम के 2 मोल्स और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया तो 2NaH2 सोडियम अमाइड बना है. ठीक है. कैल्शियम एंड सोडियम बोथ बिलोंग्स टू फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है. अल्कलाइन मेटल्स है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. ठीक है. आयोनिक हाइड्राइड्स किस में बनते हैं, हाइड्रोजन और फर्स्ट ग्रुप और एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं. वो हाइड्राइड्स जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में बने वो आयोनिक हैं. ठीक है. After ionic hydrides, we have covalent hydrides. Mainly group 4th and 7th combine with hydrogen to form covalent hydrides. Means जब भी 4th group elements और
सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट्स जो कि हेलोजन्स कहलाते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। द बॉन्ड बिटवीन दैम इज कोवलेंट बॉन्ड। जब भी फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा। हेलोजन से अब कंबाइन होंगे तो उनके बीच में भी जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा। That is why these hydrides are known as covalent hydrides. They are colorless gases, ठीक है, and volatile liquids having low boiling points. एक तो ये लोग कलरलेस होती हैं, उसके बाद वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि वो लिक्विड्स जो इजीली रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, उनको किसी हाई प्रेशर की, किसी हाई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मैथड्स: H2 plus Cl2, 2HCl, hydrogen chloride. As you know, chloride belongs to the group 7A. Hydrogen sulfide, hydrogen plus sulfur makes hydrogen sulfide. And then we have complex hydrides. Hydrides of group 3A elements combine with hydrides of group 1A elements to form complex hydrides. थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स होंगे वो कंबाइन होंगे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के साथ और वो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाएंगे। दीज आर सॉल्ट लाइक वाइट सॉलिड्स, ठीक है, दीज आर सॉल्ट लाइक वाइट सॉलिड्स। And then we have metallic hydrides. Transition metals combine with hydrogen to form metallic hydrides. जैसे कि मैंने आपको periodic table में दिखाया था, purple ones जो थे सारे transition metals थे। So जब भी हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कंबाइन होगा वो क्या बनाएगा, मेटालिक हाइड्राइड्स बनाएगा। These hydrides are also known as interstitial hydrides because hydrogen occupies interstitial spaces, that means empty spaces between atoms, ठीक है। इन हाइड्राइड्स को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं क्योंकि इन हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसके एटम्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, दैट मीन्स एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है। And then we have polymeric hydrides. First two members of group 2A, that is beryllium and magnesium, combine with hydrogen to form polymeric hydrides. Their properties are intermediate between ionic hydrides and covalent hydrides. इनकी जो properties हैं कुछ ionic hydrides से मिलती जुलती हैं, कुछ covalent hydrides से मिलती जुलती हैं। And then we have borderline hydrides. These hydrides are formed by metals of group 1B, 2B, and few metals of group 3A, that is indium and thallium, combine with hydrogen to form borderline hydrides, ठीक है। फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी आपके पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, ठीक है। जब हाइड्रोजन फर्स्ट बी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा और सेकेंड बी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होगा तो वो बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स बनाएगा, और कुछ यानी कि दो एलिमेंट्स इंडियम और थैलियम के साथ जब भी जो कि थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इंडियम एंड थैलियम के साथ कंबाइन होगा तो तब भी बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स बनाएगा। सो दिस इज इट फॉर द हाइड्राइड्स and I hope you enjoyed this video. If you do so make sure to hit that like button and subscribe too, and also do let me know in the comment section if a topic that irritates you, that has a lot of difficulties. So Allah Hafiz and take care. Bye bye.